सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। मंत्र पाठ आप लोगों ने किया कि नहीं किया? किया महाराज जी, किया महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। ओके, नमस्कार। प्रणाम महाराज। ये प्रणाम स्वामी जी। महाराज जी आपको देख नहीं पा रहे महाराज जी, आज मोबाइल से जुड़े हैं महाराज। बोलो रीता, शुरू करो। हाँ स्वामी जी। In the last class we had covered the saints of South India. This time we will be covering the saints of North India and of Bengal. Bhakti movement in North India was inaugurated in the 13th century by a great saint Ramananda as a reaction to political conquest of India by Muslims. Ramananda was born in AD 1299 in Allahabad, but his ancestry was from South India. He was a child prodigy who mastered the scriptures at an early age. He joined the Sri Vaishnava order of monks and was a disciple of Raghavananda, who was the leader of that order. He went on pilgrimage to South India. On his return, the monks under Raghavananda did not admit him into the fold. A rude shock to Ramananda. Then on, he led an independent life. His most famous saying was, "Let no one ask a man's caste or with whom he eats. If a man is devoted to Hari, he becomes Hari's own." He lived in a hut on the banks of the Ganga at Banaras and practiced intense austerities and meditation. He came out of his hut 4 times a day and blew his conch shell, which was a clarion call and message of hope to many. Many disciples came to him, both Hindus and Muslims. Great saints like Kabir, Ravidas, and Dhana, and several women saints also came to him as disciples. Ramananda identified Rama with the Supreme Spirit and looked on humanity as one family. He did not distinguish between caste and religion and made way for a unique blending of Hindu and Islamic piety. He preached vigorously. Very few of his poems have survived. A single poem is recorded in the Granth Sahib, which shows his breadth of vision. It reads, where shall I go? Ramananda is lost in his master, Brahman. It is the word of the Guru that destroys all the millions of bonds of action. You are just reading the whole thing. Ji Swamiji. It is the word of the Guru that destroys all the millions bonds of action. Ramananda's message of simple devotion and social equality spread all over India through the songs of Kabir. The next great saint, Kabir, is Kabir. His year of birth is not known, but he dominated the 15th century when Hindus and Muslims were trying to get adjusted to each other's religious beliefs and practices. He was either a real or adopted son of Muslim weaver parents in Banaras. These weavers were formerly Hindus and were accorded low social status by both Hindus and Muslims. Once they were free from burden of religious traditions and disciplines. Kabir's poems were influenced by the unconventional society in which he grew up. He did not have regular schooling or training in philosophy. Married with a son and daughters, his domestic life was not happy. He earned his livelihood by weaving, and his poems were composed while weaving. He did not have a guru for a long time.
He had heard about Ramananda but was afraid the saint may not accept him as a disciple. Once, when Ramananda was going for his bath in the Ganga, Kabir lay down on one of the steps leading to the river. The saint's foot touched Kabir and the saint exclaimed, Ram, Ram. Kabir stood up and with folded palms said, Master, you have given me the mantra and made me your disciple, even though I am a poor weaver. Ramananda was touched and accepted Kabir as his disciple and revealed to him the secrets of spiritual life. From then on, Kabir led a God intoxicated life, constantly singing God's praise and remembering Him. He attained illumination. It is said that he was persecuted by both Hindus and Muslims and banished from Banaras. He spent the rest of his long life wandering from place to place with his disciples. A legend says that after his demise, his Hindu and Muslim followers quarreled on how to dispose the body. But when they lifted the shroud, they found only a heap of flowers. Kabir's message and teachings are in his songs and have a strong moralizing vein in them. He stressed simplicity of life, manual labor, equality of man, and condemned religious bigotry. He laid great stress on chanting the name which he identified with God himself. For him, rituals and blind worship had no meaning. And Ram and Rahim were the same supreme spirit. And he said what everyone ought to do was to seek the Lord in the depths of one's heart. Kabir's songs spread among the masses and helped them to grasp the essentials of true, spirit, true spiritual life. His poems profoundly influenced the social outlook and religious beliefs of people of North India. It is worth reading Kabir's songs, especially his Duawali, which has also been translated into English by Swami Brahmeshananda. Ravidas or Raidas was another great disciple of Ramananda. He too led a householder's life and earned his livelihood by manual labor, making shoes, which is considered one of the lowliest professions in Hindu society. His domestic life was peaceful. His songs reveal a highly refined mind, always immersed in the love of God. A poor cobbler, the reputation of his sainthood spread and he had a large following. His life and teachings have inspired millions of people in North India, especially among the poor and low caste people. Guru Nanak Dev was another great saint of North India and the founder of the Sikh religion. He was born in 1469 in a village near Lahore in Punjab in a Kshatriya family. His father was the village accountant and a farmer. He was sent to school in the early boyhood, where he learned Hindi, his own native dialect, and Persian language. He had a deep religious temperament from childhood and practiced meditation. His father made him look after cultivation and attend to trade. Nanak's heart was set on spiritual matters, and in spite of the work, he began to devote more time in contemplation. He was married and had two children, but paid scant attention to household duties. He spent his time in woods and lonely places. He had a job under the Muslim governor in the district. His inseparable companion Mardana joined him there to serve him. They used to spend their free time in bhajan. Nanak finally renounced the world, distributed his wealth among the poor, and with Mardana wandered all over North India, practicing contemplation in solitude and meeting holy men. He may have been influenced by the poems of Kabir and the new religious awakening in South India. It is said that he visited Mecca and held discussions with the Muslim divines of Arab countries. After 12 years,
he returned to Punjab. Tradition says that he influenced the Mughal Emperor Babur to treat his prisoners with kindness. Towards the end of his life, Nanak gave up the garb of the ascetic and lived with his family. The fame of his holiness spread, and people flocked to see him and attend his group prayers. Offerings brought by them were spent on the poor. Like Kabir, Nanak preached one non-anthropomorphic but personal God whom he called Hari. Like Kabir, he gave greater importance to purity of heart, condemned caste restrictions, and exhorted people to lead a simple life and gave importance to the repetition of the divine name. In his old age, he wrote a long poem called Japji, which every pious Sikh recites at daybreak. A few lines of him. Don't read the few lines. You are Okay. increasing, elongating. Uh-huh. Within 5 Swami, minutes, you have to summarize remaining okay. portion. Swami Vivekananda used to sing a beautiful song of Nanak before Sri Thakur. The story is told that Nanak wanted to enter the temple of Jagannath Puri to witness Aarti, but the priest did not allow him, and he sat outside the temple and composed this song. He lived and died a great saint. After his death, his followers separated from the Hindu fold and started a new religion, Sikhism. Nanak's influence is a living force till now, especially in the Punjab and its bordering states. Tulsidas, another great saint of the 16th century, whose Ramcharitamanas influenced whole of North and Central India. It has shaped the moral and spiritual lives of millions of people in India. Born in 1532 AD in a Brahmin family in an obscure Uttar Pradesh village, it is said that he uttered the name Rama as soon as he was born. The parents abandoned the boy, considering this as an ill omen. He was picked up by a saint, Narahari Das, at the command of the Lord himself. Tulsi paid his heart's tribute to this guru and his foster parents in a beautiful poem. He studied under another sadhu, Sesa Sanatana, for 15 years and mastered the Vedas and Vedanta. He married Ratnavali and had a son. He was passionately fond of his wife and one day followed her to his father-in-law's place uninvited. She was annoyed and rebuked him, saying that he should give up the love for the body and instead offer even half of that to the Lord, which would give him salvation. This brought a new light to Tulsidas and awakened him to the unreality of world and reality of the Supreme Spirit manifest as Sri Rama. He renounced the world, visited the 4 holy places, Rameshwar, Dwarka, Puri and Badrika Ashram, and settled down at Banaras. He took short pilgrimages but always returned to Banaras. His whole soul was drawn to Sri Rama and longed for his vision. It is said that Ram Bhakta Hanuman showered his grace on Tulsi, who had several visions of Sri Rama, and during these visions, he would lose all consciousness of the outer world. He saw the charming form of the Lord on horseback as a prince, and of the prince sporting on the banks of the river Sarayu. At Vrindavan, a bigoted worshipper of Sri Krishna told him that Krishna was the greatest avatar and Ram only a partial avatar. Tulsi told him that he was devoted to Rama till then as Dasharatha's son, but now that he knows he was an incarnation, he is totally that Ram is the Supreme Spirit. As divine realization filled him with love and simplicity for his fellow beings, and he was eager to spread, to share with all the blessings he had received.
His great immortal work, Ramcharitamanas, and his second best work, Vinay Patrika, reveal a heart overflowing with divine love. Tulsidas once gave consecrated food to a murderer and declared him purified, to which the Orthodox Brahmins objected. Tulsi they made him go through a test and said if the murderer, if the bull ate from the hands of the murderer, his words were proved. Kali threatened to devour Tulsidas, who in a dream received advice from गीता Hanuman. मैडम, Yes. महाराज जी कह रहे हैं कि समाप्त करने के लिए. Okay. Then, okay, Swamiji. He was. Tulsidas. अच्छा, महाराज कह रहे हैं अब क्वेश्चन आंसर शुरू करने के लिए. Okay, Swamiji. Thank you. Thank you, sir. हाँ जी महाराज. Maharaj, my question is on Saint Kabir's death, why Muslims and Hindus were fighting and found that his body was not there, only flowers were found. As we also read in our school books, is it true? Like, how is it possible? मैं ये बोल रहा था, ठीक है मैं बोल रहा हूँ. श्री रामकृष्ण के लाइफ में बहुत सारे मिराकल्स हैं कि नहीं? Yes. हेलो. जी महाराज. The person you are जी speaking महाराज. with has put your call on. जी महाराज. अनहोल्ड हो गया. हेलो, अब आवाज आई? जी महाराज, जी महाराज. जी. श्री रामकृष्ण के लाइफ में बहुत सारे मिराकल्स है ना शिवानी? जी. वो जो है वो ये सब लोग काशीपुर कुछ खाने के लिए जा रहे थे, वहां पे सांप था, तो ठाकुर जो है वो सुख शरीर में दौड़ के गए, सांप को भगा दिया. हेलो. जी 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 महाराज, सुन रहे हैं हम लोग. नहीं, आवाज में दिक्कत हो रही है महाराज. वॉइस कभी एक दो शब्द सुनाई देता है ठीक से, फिर बाकी चोक हो जाता है. मैंने अपने यहाँ का तो पोजीशन चेंज करके देखा है. अब आगे बच्चे आया हूँ. हाँ, अब थोड़ी सी आवाज ठीक है, बेहतर है. देखें, अभी कंटिन्यू करें. कंटिन्यू करो जी. हाँ, तो ये क्वेश्चन जो मैंने था शिवानी का पहला क्वेश्चन जी. मिरेकल्स लाइफ के अंदर संतों की लाइफ में कॉमन चीजें हैं, उसके ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए जी. अगर आप सूफियों का सुनोगे तो वहां पे भी आपको बहुत सारे मिरेकल्स बनेंगे, और पहले जमाने के और भी अधिक मिलेंगे. अगर आधुनिक जीवन में भी हो सकते हैं, पहले भी हो सकते हैं. शिवानी बीच में सुन रही हो तो? जी महाराज. तो बीच में जी जी करते रहो, जिससे पता चलेगा कि आवाज आ रही. बराबर. ठीक है महाराज. सेकंड क्वेश्चन ले लो. हाँ, second question on page number 625, as mentioned, the incidents of Tulsidas and Emperor Jahangir. Yes. Tulsidas replied, one who wants to perform the Lord's devotion should never seek to accumulate riches. The contemplation of money and its attendant anxieties spoil the mind and render it unfit for meditation. How practically we can follow this? आज आपकी आवाज नहीं आई, थोड़ा दोबारा कोशिश करें. ऑडियो कंटिन्यू. ऑडियो हाँ, आ रही है महाराज. अभी अब आ रही है कि तुम्हारे है. हेलो जी महाराज. जी महाराज. हमारा प्रश्न जो है ना जी, ये प्रश्न है कि जहांगीर कुछ इसको तुलसीदास को जेल उन्होंने मना कर दिया, यही तो है ना? हाँ हाँ. महाराज, आपकी कॉल होल्ड पे चली गई थी, फिर डिस्कनेक्ट हो गई, तो हम लोग कुछ देर से नहीं सुने, एक दो लाइन ही सुने थे. हाँ महाराज, उस क्वेश्चन का आंसर आप बता रहे थे. है कि वो जहांगीर कुछ तुलसीदास को देना चाहता था, मना कर दिया. यही है ना क्वेश्चन तुम्हारा? जी. और
तो क्या पूछना चाहती हो? वो मैं ये पूछना चाहती हूँ, उसमें उन्होंने कहा है ना कि आपको पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, वो मेडिटेशन में हेल्पफुल नहीं रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो प्रैक्टिकली हम कैसे कर सकते हैं ये चीज? ऐसा है कि देखो, याद हम्म। रखना, ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, जितना परिग्रह होता है ना, जितना संचय होगा ना, जी। उतना एंग्जाइटी बढ़ेगी। जो संचय कर चीजें, द वर्क, द ग्रेटर अमाउंट ऑफ थिंग्स आर इन योर रूम, दे आर आल्सो इन योर माइंड। कहते हैं कि जितनी चीजें हैं वो बाहर कपड़े पे भी नहीं होते, अपने दिमाग में जगह ऑक्यूपाई करती हैं। इसलिए संत लोग जो होते हैं ना, उनके पास तो कुछ भी नहीं होता है, झोपड़ी होती है बस, और कुछ नहीं होता। इसलिए वो खाली अपना मन लगा के भगवान का भजन कर सकते हैं। याद रखो, इसलिए क्या है कि जो कुछ मिले, जितना है वो उसको याद रखो। जब कभी कुछ चीजें अपने जीवन में आवे, जरूरत होवे, तो अपने मन को पूछो, कैन आई डू विदाउट इट? जी। You want to have a new shirt or new साड़ी, can I do without it? ये पूछो। ठीक है महाराज। Find that हमारी desires जो है, necessity के बदले desires बहुत प्रॉब्लम करती है। Make a difference, desire, make a difference between desire and necessity. ठीक है महाराज। Whenever you want something, you ask yourself, can I do without it? And in 90% cases, you will find that I can do without it. Yes. The second is when you need, no, I cannot do without it. Okay, then let me wait to get it. आज लेने के बदले आप 7 दिन के बाद में उसको लो। ठीक है। You will find that अपनी लाइफ जो है धीरे धीरे सिंप्लीफाई हो जाएगी। और जो संसार की चीजों के कारण जो बॉदरेशन होते हैं ना, परिग्रह के कारण, पोजेशन के कारण जो बॉदरेशंस होते हैं, वो अधिकांश कम हो जाएगी। हम लोग ऐसे करते हैं। सिंपल लाइफ इज ए हैप्पी लाइफ। जी। साधना के लिए जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा मत रखो। ठीक है महाराज। उसको प्रैक्टिस करके फिर महाराज, जैसे अगर जो मनी हम इकट्ठी करते हैं या सेविंग्स करते हैं फॉर फ्यूचर यूज, तो उसमें क्या कर सकते हैं फिर? वो तो ऑटोमेटिकली अगर हमारे खर्चे कम हो जाएंगे और भी ज्यादा बचेंगे। उसको फिर डोनेट करके ले जाओ। हाँ जी, डोनेट कर दो। हाँ ठीक है, यही पूछना था मुझे। हाँ ठीक है, थैंक यू महाराज। प्रणाम महाराज जी। आपने मेरा नाम पूछा? हाँ। अच्छा, प्रणाम महाराज जी। मेरा पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ रामानंद टू ब्लो conch 4 times in a day? Was it at the 4 praharas of the day to declare Hindu auspicious hours, or there was any other reason, for example, against Muslim Azan? नहीं आवाज आ पा रही है महाराज, दिक्कत हो रही है। हम लोग इसको नहीं तो अगली संडे करें क्या? अब देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इधर उधर घूम के, कभी नहीं आ रही आवाज। अब आवाज आ रही है कभी कभी, हाँ कभी कभी आ रही है। आवाज आ रही है। अभी क्लियर आ रहा है महाराज, बिल्कुल क्लियर आ रहा है आपकी आवाज अभी। ठीक है, मैं पकड़ता हूँ। हाँ, अभी बिल्कुल क्लियर आ रहा है। अच्छा, ओके। तो शंख बजाना। हेलो जी महाराज। शंख बजाना है ना जी। ये एक अवेकनिंग का है, पॉजिटिव है, उत्साह का, इस सब का एक इंडिकेशन है। अच्छा। हाँ, तो वो करते थे। वो आप हिंदू धर्म के लिए ले सकते हो, किसी के भी लिए ले सकते हो। जी। तुम कहते हो 5 नमाज, मुसलमानों की नमाज तो 5 होती है, 4 थोड़ी होती है। जी। लेकिन वो 4 करते थे, तो ऐसा कहना मुश्किल है कि वो मुस्लिम के अगेंस्ट करते थे, ये कहना मुश्किल। जी। जो 4 बार करते थे, ये बहुत अच्छी
बात है लोगों को जागृत करने के लिए, धर्म का प्रसार प्रचार करने की। जी, हमारे 4 प्रहर में, इसका मतलब। सेकंड, हाँ जी, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम द टेक्स्ट, हम पढ़ रहे हैं टेक्स्ट से। ए न्यू ट्रबल हाउएवर अरोज, काली द एम्बॉडीमेंट ऑफ इविल threatened to devour Tulsidas. Tulsi prayed to Hanuman, who appeared to him in a dream and advised him to file a petition to Sri Ram, the Lord of the universe, for remedying the evil, and that was the origin of the Vinay Patrika. So my question is that please explain this part. ये हमें समझ में नहीं आई। ये भाई ये थोड़ा मिस्टिक है ना, वो एक रहस्यमय मिस्टिक चीज है। कली यानी कलयुग जी। तो अच्छा, काली नहीं, वो कली। अच्छा, बन के आया उनको खाने के लिए। अच्छा, और हनुमान जी को उन्होंने प्रार्थना की। अच्छा, मतलब वो कली है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज कलयुग जी। कलयुग दूर करने के लिए क्या किया, हनुमान जी ने कहा कि तुम एक विनय प्रतीक भगवान से प्रार्थना करो जी। और भगवान को प्रार्थना में उन्होंने विनय प्रतीका दी थी। अच्छा, तो विनय प्रतीका का महत्व जो है ना जी, वो रामचरितमानस के बाद में दूसरा ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है विनय पत्रिका। अच्छा, विनय पत्रिका के भक्ति उसमें कोई फिलोसफी नहीं है, उसमें हाँ, खास करके प्रार्थना ही प्रार्थना है। अच्छा, शिव जी की प्रार्थना, फिर पार्वती जी की प्रार्थना, फिर गणेश की प्रार्थना, ऐसे देवी देवताओं की 40-50 प्रार्थना ही प्रार्थना है। उसमें हर एक में एक एक उन्होंने वो छंद लिखा है, एक पोएम लिखी हुई। अच्छा, बाद में फिर राम जी को प्रार्थना लिखी। ओ, तो इस बेसिकली इट इज ए प्रेयर बुक, बेसिकली ये प्रेयर बुक है। ओके। तो ये इसमें बस यही है, उसका इम्पोर्टेंस ये है कि उसको आप पढ़ोगे तो मानो कलयुग के जो दोष वगैरह है ना वो हमको कम अफेक्ट करेंगे। ये अच्छा, ठीक है, ठीक है। मेरा थर्ड प्रश्न है, मीराबाई taught भक्ति of the highest kind, that is superhuman renunciation. So what is meant by this? What about the other gurus preaching, and what were the differences amongst their love and bhakti? सुपर ह्यूमन रिनंसिएशन ना जी। अभी ऐसा है कि वो वहां पे क्या है महाराज बोलना चाहते हैं ये कह नहीं सकते, लेकिन रिनंसिएशन को पतंजल योग सूत्र में 2 प्रकार के हैं, सामान्य वैराग्य और पर वैराग्य। सुपर ह्यूमन रिनंसिएशन करोगे तो पर वैराग्य बोलना पड़ेगा। तो वैराग्य यानी है कि वो जब हम भगवान का साक्षात्कार हो जाता है तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं उनसे पूरी तरह वैराग्य हो जाता है। पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णम, यानी एक बार भगवान का दर्शन हो जावे तो संसार के समस्त 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, तीनों गुणों से बनी हुई जितनी संसार की चीजें हैं वो सब के सब में वितृष्णा हो जाती है, वैराग्य। इसको कहते हैं पर वैराग्य। तो महाराज किस मामले में कह रहे थे, कह नहीं सकते। सेल्फ रियलाइजेशन से पर वैराग्य यानी सुपर ह्यूमन रियलाइजेशन अपने आप से होता है। ठीक, और गुरु की बात है कुछ इसमें? हाँ, मतलब हम वहां नहीं किया गया। मैंने पूछा कि जो और गुरु जो हैं वो जो लव और प्रेम और भक्ति की शिक्षा देते हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या है मीराबाई से? ये टेक्स्ट में नहीं है, मैं पूछ रही हूँ। मतलब समझ में नहीं आया। और मतलब सुपर ह्यूमन रिनंसिएशन बोल रहे हैं ना, तो और भी गुरुज हैं जो प्रेम और भक्ति के मतलब पराकाष्ठा हैं, तो डिफरेंस क्या है यही पूछ रही थी। वो तो क्या जी, प्रणाम महाराज। उसके बाद में क्या है कि हम लोग जो वो तो सुपर ह्यूमन रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हमारा क्या है कि धीरे धीरे वैराग्य होता है और सारा जीवन में नहीं होता जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ही हम लोगों के लिए है, सब भक्ति करते हैं, मीटिंग करते हैं, वैराग्य हम लोगों के जीवन में नहीं आता है। हम सरकार को जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग से पकड़े रहते हैं। पकड़े जी।
अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, हाँ, प्रणाम महाराज। सुबीर मजूमदार। हाँ प्रणाम महाराज जी। हाँ महाराज ऐसा है कि पहले मैंने 4 सवाल किए थे, तो आपने कहा था कि ये हिस्टोरिकल इन नेचर है और तुम खुद ही डिस्कस कर लो। तो मैं आपको जो सवाल है वो पढ़ता हूँ और उसके बारे में जो इंटरनेट पे मिला है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, फिर आप उसका कुछ होगा तो संशोधन कर दीजिएगा। हाँ चलो। तो मेरा पहला सवाल था, द वर्शिप ऑफ डिवाइन मदर इन बंगाल यूजुअली मेंट वर्शिप ऑफ माँ काली and we can relate to the tantric aspect of sadhana with it. Yes. How did the worship of Ma Durga start and on what basis? Did it also have a tantric basis? तो ये मेरा सवाल था। तो मैंने जो देखा तो उसमें मुझे ये मिला कि worship of Durga started in the 11th or 12th century and it is mentioned in the Jain text of Yasa Tilaka, where annual festival used to occur where it was dedicated to a warrior goddess celebrated by the king there. But it increased during the British Raj and she is taken as part of the Shakti cult. Hence, devotees recite from the Bhagavatam and Saptashati. But Durga-like images also seen during the Indus Valley civilization, which is so many thousand years ago. And the mention is also there in the Devi Suktam, in the 10th mandala of Rig Veda. Also in Mahabharata, Arjuna and Yudhishthir invoke Durga. So it is also found in various Upanishadic texts. I think Mundaka Upanishad it was found. And in the Lakshmi Tantra, Durga is mentioned as one of her forms. So it has a relation with the Tantra. And there was a movement in the 300 BC which was called the Pancharatra Samhitas. तो पंचरत्र संहिताज में भी इसकी मेंशन है। और बाद में ये पॉपुलर हो गया क्योंकि इंग्लिश जो ब्रिटिश आए हुए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने वेस्ट बंगाल में मासेस में पॉपुलैरिटी अपनी बनाने के लिए ये दुर्गा पूजा को काफी बढ़ावा दिया। दैट इज व्हाट आई फाउंड महाराज। वो तो ये जरूरी मतलब ये है कि वो तो हमारा दुर्गा सूक्त है ना, वो तो वेदों में है। जी जी। देवी और क्या दुर्गा देवी जो शमाना है ना, जी वो तो है। तो मतलब ये है कि काफी पुराना है। दैट इज ऑल द मेन थिंग इज दिस। जी महाराज। अच्छा दूसरा क्वेश्चन था महाराज, हु वाज द हरि, क्योंकि गुरु नानक हरि को बोलते थे, ये हरि कौन था, ये मेरा सवाल था। तो ये जो मुझे जवाब मिला कि हरि इज रेफर्ड टू एज द सुप्रीम लॉर्ड, तो वो नॉट नेसेसरीली जो हम हरि कहते हैं, यूज जस्ट ए सिंबल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। जी राम शब्द जो राम है ना, जी तो राम के केवल रामचंद्र नहीं है। जी राम शब्द का अर्थ भी परमात्मा है, ब्रह्म है। जी उसी प्रकार हरि शब्द का भी अर्थ है ब्रह्म परमात्मा है, दोनों ही है। पर ब्रह्मन का जी। और मेरा एक और सवाल था कि गुरु नानक डिड नॉट स्टार्ट सिखिज्म, बट व्हाट इन्फ्लुएंस्ड हिज फॉलोअर्स टू क्रिएट ए न्यू रिलीजन। तो इस पे भी मैंने कुछ देखा, तो इसमें जो मुझे जवाब मिला ये कि सिखिज्म का मतलब होता है सिक्खी। मेरे ख्याल में चंडीगढ़ के जो लोग हैं वो शायद बेहतर जानते होंगे इस बारे में। ये कहते हैं सिक्खी मीन्स टीचिंग्स फ्रॉम द एंड इन द पंजाबी लैंग्वेज इट इज कॉल्ड सिक्ख्या। So the disciples came to be known as Sikhis. One who learns from Guru's teachings. नहीं शिष्य हो गया ना। हाँ शिष्य से सिक्खी आया है, वही मैं कह रहा हूँ। And the Sikh religion gradually developed over several generations after Guru Nanak passed away. And टिल गुरु गोविंद सिंह, तो उस धीरे धीरे सिखिज्म इस तरह मतलब एस्टेब्लिश हुआ। प्रश्न ये है कि तुमने शुरुआत कैसे हुई ये नहीं बता रहे हो। वो सिखिज्म फ्रॉम द वर्ड सिखिज्म। क्वेश्चन इज दैट गुरु नानक डिड नॉट स्टार्ट सिखिज्म। नो महाराज, सिखिज्म स्टार्टेड। योर क्वेश्चन इज दिस। जी महाराज। नॉट आंसरिंग इट। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि जो सिख नाम आया है
वो उनके फॉलोअर्स ने, क्योंकि वो शिष्य थे, तो उन्होंने ही फिर उसको एक अलग रिलीजन का नाम दिया। ओवर इट टुक सेवरल जनरेशंस फॉर दिस रिलीजन टू एक्चुअली टेक शेप। मैं वही कह रहा हूँ, बस इतना ही है। और इसके बाद एक सवाल और था महाराज जी कि सवाल और बाद में पूछे तुमने, क्या चीज महाराज? You asked 2 more questions. हाँ महाराज जी, वही मैं अभी दूसरा सवाल आपको पूछ रहा हूँ। तो ये सवाल है पहला वाला। We see in this chapter the saints have intense yearning, व्याकुलता, they have one-pointed devotion and they lead a God intoxicated life. ये तो saints की बारे में है, but we are ordinary mortals, हम साधारण जीव हैं। Other than trying to increase our व्याकुलता, what else can we do to emulate these saints? Is it enough if we try to do satsang and lead a moral and ethical life? Or should we practice long hours of meditation as far as possible in our capacity? हमें क्या करना चाहिए? तुम तो ये रिलीजियस लाइफ कैसे अच्छे भक्त के लाइफ लीड कर रहे हो, क्या हुआ? व्याकुलता तो आई नहीं, आई क्या? नहीं। क्यों नहीं आई? एक चीज इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, वो है वैराग्य। वैराग्य, हाँ, वैराग्य के बिना नहीं होता, कुछ नहीं होगा। वैराग्य इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ध्यान जप करो, भजन करो, कुछ नहीं होगा वैराग्य के बिना। वैराग्य इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। विचार के द्वारा, जी महाराज, विचार के द्वारा अनित्यता का, अनेक प्रकार का नित्य अनित्य विवेक, आत्मा विवेक इत्यादि सब के द्वारा, विवेक के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, विवेक के द्वारा वैराग्य होता है, उसके नहीं होता। जी जी जी, बिल्कुल मैं समझ गया। तो सिर्फ मॉरल एथिकल लाइफ करने से या सत्संग करने से, लेक्चर सुनने से नहीं होगा, वैराग्य करना पड़ेगा, विवेक विचार करके। जी महाराज। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज महाराज, इन दिस चैप्टर वी हैव सीन द लाइव्स ऑफ भक्ति सेंट्स। टू सम, especially women, emotion comes very easily, as emotion is a precursor of bhava and bhakti. How does one develop such bhava easily? हम लोगों में भाव इतनी easily नहीं आता जितने women में आता है। तो इस भाव को हम लोग कैसे भाव आता है? आध्यात्मिक भाव आता है। स्त्रियों तो इमोशनल होती है ना, तो इमोशन को भाव से इक्वेट कर रहे हो। अच्छा, इमोशन जो है, इतनी स्त्रियों तो इमोशन भरती रहती हैं। थोड़ा सा भजन की कर दो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी महाराज। भक्ति होती क्या? इतना तो बड़ा पढ़ लिया कि इसमें 4-5 विमेन सेंट्स और तो सेंट्स नहीं है। जी तो फिर जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो उससे क्या भाव से भक्ति, भाव से यानी इमोशन से भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। I see। हाँ, ऐसे भी तो संत हैं जो आंखों में आंसू नहीं आएंगे लेकिन भक्ति से, प्रेम से भरे। अच्छा, जी महाराज, it has nothing to do with भक्ति। वो नहीं है, वो वही वैराग्य के द्वारा व्याकुलता होनी चाहिए, उसके बिना नहीं होता। जी महाराज, जी महाराज। भाव विद भक्ति। जी 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 जी, ठीक है महाराज जी, दैट्स ऑल महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। अब तीसरा, इसके आगे चलो सतीश। प्रणाम महाराज। हाँ बोलो। सतीश बोरा महाराज। हाँ जी महाराज। माय फर्स्ट क्वेश्चन महाराज फ्रॉम Gospel of Shri Ramakrishna. Maharaj, Thakur used to say, Diksha Guru has to be seen as embodiment of God. Otherwise, there shall not be any progress in spiritual life. My question is how to attribute divine qualities such as beyond Trigunatita Maya and beyond 5 kleshas to a human guru so long he is in a physical body, which however can be attributed to avatar of Ishvara. No, you have not to, उसके अंदर कोई गुणों को आप वो नहीं करना है। वो गुरु जो है वो सच्चिदानंद है। It is not attributing of qualities. सच्चिदानंद, सच्चिदानंद है, वो सच्चिदानंद है, यानी परमात्मा स्वयं है। गुरु को इस प्रकार से देखना चाहिए।
नहीं जैसे मतलब महाराज ऐसा है ना सांख्य, कि गुरु की हाँ जी, सेवा करने जाओगे तो पता चलेगा कि गुरु को तो जरा शरबत पसंद आता है तो तुम शरबत बना के दोगे, गुरु को खीर पसंद आती है तो लोग खीर बना के देते हैं। तो ऐसे कैसे गुरु हैं जिनको खीर भी पसंद है शरबत भी पसंद है? समस्या हो जाएगी। और गुरु जी जो है महाराज वो जी, शरीरधारी है, उनका मन है उसमें जी अच्छा बुरा सब रहता है, सब जी त्यागी जी पूर्ण महाराज, रूप से वो सिद्ध नहीं हो जाते। अरे ठाकुर में भी तो थोड़ा टेस्ट था ना, अरे मेरे को ये चीज अच्छी लगती है। जी जी महाराज, तो गुरु को इस प्रकार का एक सत्पुरुष नहीं देखना, उनको सच्चिदानंद देखना है, ये याद रखो। जी उसको सच्चा नाम देखना है महाराज। जैसे कि सच्चिदानंद, जी 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 महाराज, जैसे भगवान ब्रह्मा जी जी महाराज, जैसे महाराज बोलते हैं कि नहीं सच्चिदानंद, जी जी महाराज, जी महाराज, हाँ वो बोलना। महाराज जी महाराज, जैसे मतलब ये है पतंजलि कि योग, भगवान स्वयं हमको दीक्षा दे रहे हैं। हाँ जी जी जी, दीक्षा देते हैं तो याद रखना गुरु स्वयं बोलते हैं कि भाई मैं दीक्षा नहीं दे रहा हूँ, रामकृष्ण श्री रामकृष्ण गुरु दीक्षा दे रहे हैं, यानी रामकृष्ण भी सच्चिदानंद है। जी जी महाराज, तो जब उनका जब ध्यान करना है तो उनको ये सोचना है कि वो सच्चिदानंद है, वो भगवान है। हाँ सच्चिदानंद है। जी महाराज, जैसे पतंजलि योग में ईश्वर की क्वालिटीज बताई हैं, ही इज बियॉन्ड 5 क्लेशास, और जो है तो वो भी एट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको उनके ऊपर। नहीं वो चीज दूसरी है, ये दूसरी चीज है। जी जी महाराज, अरे वो तो उसमें कहा है ईश्वर है ना, इससे पवाचक प्रणव सब पूर्वेशाम भी गुरु, उसको कर सकते हो तो। ईश्वर जो है उसमें केश कर्म इत्यादि नहीं है, पूर्व गुरु है, उसमें सर्वज्ञ है, ज्ञान जानता है, उसका प्रणव जो है ओंकार उसका मत जप है, तो उसको करो। तो ये कर सकते हो। ये 3 उपदेश बड़े अच्छे लगा रखे हैं उन्होंने। ये पूर्वेशाम भी दूसरों का गुरुओं का भी गुरु है, उसमें क्लेश कर्म इत्यादि दोष नहीं है, और वे सर्वज्ञ है। ये 3 लक्षण लगा दो तो बहुत बढ़िया है। राइट महाराज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, ठाकुर जी वाज बियॉन्ड 5 क्लेशस, ही हैड एन रोड ऑफ मेंटल abilities। तो लास्ट स्टेज में उनके ये अभिनिवेश अपीयर होता है कि नहीं होता है, जब हमारी मन की भावना है? नहीं वो तो क्या है, उनको वो तो चाहते थे, वो क्या करते, वो जीना क्यों चाहते थे? दूसरों के कल्याण के लिए जीना चाहते थे। वो तो स्पष्ट कहते थे कि तुम लोग कहो तो मैं आज जो है शरीर को छोड़ दूं, स्पष्ट कहते थे वो सबको। इतना कष्ट हो जाता है, इतना दर्द हो रहा है, ये तुम लोगों के कारण है। तुम अगर आज कहो कि मैं शरीर छोड़ दूं तो मैं आज छोड़ दूंगा। उनसे कहा आसक्ति कहाँ है शरीर के द्वारा, मृत्यु का भय कहाँ है उसको श्री रामकृष्ण को। राइट, ठीक महाराज, ठीक महाराज। Next question, Maharaj. In the hymns of Kabir, much emphasis is laid on given to unite with Sabda Brahman. Hello. हाँ बोलो। हाँ जी महाराज, कबीर के भजनों में शब्द की साथ जुड़ने की बात बहुत आती है, तो उसका क्या भाव है, इसका क्या मतलब है? यह शब्द ब्रह्म, तो शब्द यानी ब्रह्म, शब्द ब्रह्म। जी उसको वो कहते हैं सुरत को शब्द के साथ जोड़ना। कबीर जो है ना निराकार के भक्त थे ना। जी इसलिए वो भगवान के नाम रूप का, उन्होंने भगवान के जो है वो गुणों का वर्णन नहीं किया, रूप का वर्णन नहीं किया, चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म, ये सब कहीं नहीं वर्णन किया। वो शब्द ब्रह्म का भजन करते थे। शब्द ब्रह्म यानी परमात्मा, निराकार। जी। अच्छा, उसके बाद 2 प्रश्न और है ना महाराज? हाँ जी महाराज, जैसे पिछले आर्टिकल में क्वेश्चन है कि वो वहाँ सेल्फ रियलाइजेशन इज बिफोर गॉड रियलाइजेशन की बात है। तो सेल्फ रियलाइजेशन की बात कही है पिछले आर्टिकल में, तो सेल्फ रियलाइजेशन जो विशिष्ट द्वैतवाद में वो कैसे होगा? मतलब कि जैसे संख्य योग में तो है कि जो अपनी आत्मा है उसको अनात्मा से अलग करना, प्रकृति से अलग करना, तो वहाँ
वहां विशिष्ट द्वैतवाद में सेल्फ रियलाइजेशन कैसा होता है? विशिष्ट अद्वैत में तो जो ब्रह्म का अपना आत्मस्वरूप में सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है कि मैं और परमात्मा एक है, सारा ब्रह्म एक, सारा जगत एक है, मैं उसका अंश हूँ, उसको अच्छी तरह जानना बस। जी जी यानी सेल्फ रियलाइजेशन तो द्वैतवाद में है, उसमें मैं अपनी आत्मा को अलग से जान लेता हूँ। मैं शुद्ध से शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। और सतीश की आत्मा भी जो है वो देह नहीं है, मन नहीं है, वो सेल्फ अलग हो गई। तो द्वैतवाद में ये सब हो गए, जैसे तुमने कहा ना सांख्य और योग में, वो द्वैतवादी है। तो द्वैतवादी ये जान लेते हैं कि मैंने अपने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, मेरी आत्मा जो है देह मन से पृथक हो गई है, शुद्ध है आत्मा। और ये सतीश की आत्मा भी शुद्ध है। जी जी हाँ, सुबीर की आत्मा भी शुद्ध है, नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा है, लेकिन वे अलग है। वो अलग है, अलग है, ज्वाइन नहीं कर दिया। और विशिष्ट अद्वैत में जो है हम सब अलग अलग हैं, लेकिन हम एक परमात्मा के अंश हैं, ये पता चल गया। जी जी हम अंश हैं परमात्मा। हाँ जी जी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, जो रामानंदा जो था, he was influenced by the South Indian saints, he traveled to South India। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने पिछली बार क्वेश्चन किया था, वो दैट वाज द रॉन्ग क्वेश्चन। द राइट क्वेश्चन इज कि वेदर द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया आर इंटरकनेक्टेड, वेदर साउथ इंडिया सेंट्स इन्फ्लुएंस्ड द भक्ति मूवमेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया। देखो तुम इस आर्टिकल को फिर से पढ़ो, उस पोर्शन को। अच्छा जी वहां पे लिखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर कई बीसी से वहां पे भक्ति मूवमेंट चल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी नॉर्थ में भी भक्ति मूवमेंट चला है, साउथ में भी अलग से चला हुआ है। रामानंद आए थे, उनसे प्रभावित हुए थे, ये भी बात सत्य है। दोनों मूवमेंट एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे, यह भी सत्य है। और दोनों मूवमेंट अलग चले थे, यह भी सत्य है। वो पोर्शन तो पढ़े ना, पेज नंबर में अभी बता नहीं सकूंगा, मेरे सामने किताब नहीं है। और महाराज जी, और उसमें लिखा है कि मुस्लिम इन्वेजन उस वक्त हुए थे, इसलिए नॉर्थ इंडिया में उसका प्रभाव पड़ा था भक्ति मूवमेंट का। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन भक्ति नॉर्थ इंडिया में भी पहले से भी थी। रामानंद गए थे साउथ में, उस पर प्रभाव पड़ा था, इसमें कोई शर्त नहीं। और वो नॉर्थ में आए थे, तो साउथ इंडिया के भक्ति का मूवमेंट का प्रभाव नॉर्थ इंडिया में पड़ा था। लेकिन ये भी लिखा है कि प्री वैदिक टाइम से ही भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में था। देखना उसको पढ़ के। ठीक महाराज, ठीक है, देखेंगे महाराज। हाँ देख लेना। ठीक प्रणाम महाराज। इफेक्ट तो करते ही थे इसमें कुछ। जी जी महाराज, इट इज ए कंटिन्यूटी। जी भाई है कि नहीं? हाँ जी महाराज जी। हाँ जी महाराज प्रणाम। अरे भाई, अरे मेरा बहुत दुर्भाग्य है कि आपके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। अरे महाराज, ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि आज का दिन गलत गया, लाइफ में से एक दिन कम हुआ गलत। महाराज मेरा सवाल है, व्हाट आर द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ वैष्णव ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स? यहाँ पे जो कहा गया है ना, हाँ यस, मॉन्क्स और संप्रदाय और ऑर्डर दोनों एक ही मीनिंग है, याद रखना। बराबर। हाँ, तुमने एक लाइन में उसमें ऑर्डर लिखा है, फिर संप्रदाय लिखा है, दोनों एक ही चीज। अच्छा, और वो स्ट्रिक्ट रूल जो है ना, वो कट्टरपंथी वैष्णव। हाँ। तो जो है, तो वैष्णव जो हो गया, तो वो जैन के हाथ का भी नहीं खाएगा। हाँ। समझे ना? वो है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, तो दूसरी छोटी नीची जात का भी हिंदू, तुम कौन सी जात के हो? तो अपने फलाना बताना बता दिया। और तुम कौन सी जात के हो? तुम दूसरे जात को, वो भी हिंदू है, लेकिन दूसरे जात का नहीं, तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगा। अच्छा अच्छा। ये एक जमाने में इस तरह की बात चलती थी जी। यहाँ तक कि वो दक्षिण भारत में तो ऐसा है कि एक जो शूद्र जाएगा तो घंटी बजाते बजाते जाता था। हाँ। क्यों? कि कहीं शूद्र की जो परछाई जो है ना, वो किसी ब्राह्मण पे नहीं पड़ जावे। जी। पाड़िया 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 पाड़िया। जी।
तो इस प्रकार की ये इसको कहते हैं ये कट्टरवादी चीज थी, ये बात कह रहे हैं उसमें। जी महाराज। नाउ second question, Sanatan Dharma strictly follows what we call Hinduism, and that is propagated by Ramakrishna Dev. Here in this article says Ramchandra accepted liberal views wherein his followers... Ramanand accepted liberal views wherein his followers were of other Hindus like Kabir, Ravidas, Dhanna, etc. Yes. तो मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है तो नहीं, मेरा सवाल ये है कि रामकृष्ण देव स्ट्रिक्टली फॉलोज हिंदुइज्म व्हाट इज प्रोपेगेटेड बाय रामकृष्ण देव, हिंदू धर्म, और इसके अंदर ये रामानंद ने जो फॉलो किया है हिंदू धर्म, इसके अंदर दूसरे जाति के लोग भी शामिल थे, तो हाउ कैन दे बी रामानंद उदार हो गए, उन्होंने अपने में मुसलमानों को भी ले लिया, कबीर भी आ गए और तुकाराम आ गए, जो पता नहीं क्या क्या कौन से आ गए, तो ठीक है। So can we say that they are now converted as a Hindu? वो लोग कहाँ कन्वर्ट जैसे थोड़े हुए थे, हिंदू मुसलमान ही नहीं रहे। अच्छा, पर वो हिंदू धर्म को प्रोपेगेट किया उन्होंने। अब क्या कहो, उन्होंने अपना, तो ये संत इतने बड़े थे भाई, कबीर ने कौन सा धर्म प्रोपोगेट किया, हिंदू धर्म किया कि मुस्लिम धर्म किया, कैसे कह नहीं सकते। हाँ, इतने ऊंचे कोटि के थे ये लोग। जी बराबर। जी महाराज, मेरा तीसरा सवाल है, इज रामानंद सेंट्स वर नॉट वेदांती because they say to get Gyan, the study of Vedanta is not necessary because it is written thee in vain among the Vedas. क्या प्रश्न है तुम्हारा, समझ नहीं आया। हाँ महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि रामानंद सेंट्स were not Vedanti. To get knowledge, the study of Vedanta is not necessary. ये इन्होंने लिखा है, thee in vain among the Vedas. हाँ, तो कोई भी हो और तुमने भी तो वेदांत नहीं पढ़ा है जी, लेकिन तुम अपने संत के जीवन से बन के वैष्णव हो, जो भी हो, इससे परे चले जाओगे, उसमें क्या है, वेदांत से क्या लेना देना। अच्छा जी जी, तो एक संप्रदाय है। हाँ, ऐसा जरूरी है कि तुमको वेद पढ़ना ही चाहिए, ऐसा नहीं जरूरी है। राइट जी जी। यानी आदमी किसी भी संप्रदाय का हो, वैष्णव भी हो तो उसको ठीक हो गए, संसार के सभी प्राणियों को अपना समझने लग जावे, अपना और भगवान के साथ एक हो जावे, तो वेदांती हो गया, वो तो उच्च कोटि का वेदांत हो गया जी। क्या दिक्कत है? नहीं, बस ये मेरे जानना था। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। राइट महाराज, नेक्स्ट इज he condemned the blind worship of images in temples and mosques. So can we say them Advait Vedanti or non-dualist? Because they were condemning. महाराज, कब समझ में नहीं आया क्या तुम्हारा? महाराज, मेरा सवाल ये है कि आर्टिकल में लिखा हुआ है पेज नंबर 617 पे, the blind worship of images in temples and mosques. हाँ, यानी कि ये blind worship जो करते हैं, तो that is the condemn कि ये blind worship नहीं होना चाहिए, और blind worship नहीं होता है तो वेदांती हो जाएंगे क्या, क्योंकि they don't believe in. अरे सिर्फ वर्शिप बंद होने से थोड़ी वेदांती हो जाएंगे। नहीं, तो फिर ये thee in vain among the Vedas, इसका क्या अर्थ है? एक मिनट सर, मैं देखना पड़ता है, किताब देखता हूँ, फिर एक मिनट सर जी। हाँ, पेज नंबर 615 के आखिरी लाइन है। यहाँ पे आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है महाराज। अच्छा ठीक है, एक मिनट। हाँ, पेज नंबर 615 आखिरी लाइन, बिल्कुल। Should I read महाराज जी? आखिरी लाइन है, thee in vain among the Vedas.
मैं पढ़ू महाराज जी? महाराज आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, अब ठीक हो गया। हाँ अब ठीक हो गया। अब पढ़ो। हाँ सुबीर पढ़ो तो। हाँ महाराज, ऐसा लिखा है, हाँ, they all seek thee in vain among the Vedas. Yes. If thou art not to be found here, we must go and see thee there. ये रामानंद जी लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि they all seek you here. Yes. हाँ, they all seek thee in vain. आपको बेकार ही यहाँ ढूंढ रहे हैं among the Vedas. If thou art not to be found here, we must go and see thee there, my own true guru. हाँ, तो ये क्या चीज? मैं यानी यहाँ पे नहीं, वेदों में नहीं खोजो भगवान को। हाँ, यानी सब वेदों में नहीं खोजो, अपने मन में, हृदय में भगवान को खोजो जी। That is the thing. यानी ये स्क्रिप्चर पढ़ना जरूरी नहीं है, अपने हृदय को साफ करके उसमें देखो। हाँ, अरे स्क्रिप्चर जो है ना, हाँ, अरे दिलीप भाई की वाणी जब दिलीप भाई प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो दिलीप भाई की वाणी जो है वो स्क्रिप्चर हो जाएगी। समझे कि नहीं? जी जी। हाँ, ये किताब जो है, ये लोग, ये ऋषि लोग जो बोलते थे वही तो वाणी हो जाती थी। हाँ हाँ, बराबर जी महाराज। साधना को ज्यादा महत्व दिया गया है। हाँ हाँ जी महाराज। My next question, in Jiva Anand bliss, aspect is concealed, whereas it is fully manifest in the supreme spirit. इसका क्या मीनिंग होगा? क्या मतलब? पेज नंबर 629 में लिखा है, in Jiva Anand, that is bliss, aspect is concealed, whereas it is fully manifest in the supreme spirit. यानी जीव में ब्लिस एस्पेक्ट छिपा हुआ है। क्या समझना है इसको? माया की बात है, अविद्या की बात है क्या? नहीं महाराज, इट इज 620, दिस इज पेज 629। अब महाराज आवाज आ रही है आपकी? दलीप जी कुछ नहीं, मैं वो उनका प्रश्न मेरे को समझ में नहीं आया ना। वो ये पेज नंबर, वो अपना पेज नंबर बताइए, अभी बताएंगे। पेज नंबर 629 second paragraph. In North India during the medieval period there were two streams of bhakti movement. One was centered around the worship of Rama and the other was centered around the cult of Krishna. So again they said Vallabha identified Krishna with the supreme spirit. His philosophy is called Sudavaita because in it the Jeev souls and the supreme spirit are of the same nature and are identical. Both have the nature of pure Sat and Sit, existence and consciousness. The difference between the two being that in the Jeev, the Anand aspect is concealed, where it is fully manifest in the supreme spirit. तो ये सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है। जीव आनंद एस्पेक्ट। महाराज जी वो वल्लभाचार्य जी का शुद्ध अद्वैत के बारे में पूछ रहे हैं। शुद्ध द्वैत, शुद्ध अद्वैत के बारे में पूछ रहे हैं। शुद्ध अद्वैत, हाँ जी, अद्वैत की बात कह रहे हैं वो। हाँ ठीक है जी, एक मिनट, वल्लभाचार्य की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, पेज 629 सेकंड पैराग्राफ का आखिरी 4 लाइन। ये कहते हैं, हाँ, Vallabha identified Krishna with the supreme spirit. Yes. His philosophy is called Shuddha Advait because it is the jiva, souls, and the supreme spirit are the same nature and are identical. Yes. Both are of the nature of pure Satchitanand. हाँ. The difference between the two being that the jiva, the Ananda bliss aspect is concealed, whereas it is fully manifest in supreme spirit. Yes. Now तुम्हारा क्वेश्चन क्या है इसके बारे में? हाँ, ये मेरा क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया है यहाँ पे। In the Jeev, the Anand aspect is, देखो समझ में आ गया यहाँ पे। ऐसा है जी, परमात्मा जो है वो सच्चित आनंद है। हाँ, और जीव क्या है? वो भी है सत और चित, चैतन्य है। हाँ,
लेकिन परमात्मा में आनंद भी है। हम लोग जो जीव है ना, छोटे छोटे जीव, हाँ परमात्मा जैसे ही है, केवल इतना अंतर है कि हम में आनंद नहीं है। आनंद कम हो गया, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। अच्छा समझ में आई? नहीं महाराज, मैं ये जो समझ रहा हूँ कि जीव में माया का आनंद मिलता है और सच्चिदानंद के अंदर सुप्रीम आनंद मिलता है। जीव में जो है वो आनंद जो है वो छोटा छोटा मिलता है, छिपा हुआ रहता है, कभी मिला कभी नहीं मिला। हाँ 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 हाँ, मिठाई खाई तब आनंद मिला, नहीं तो नहीं मिला। यस। लेकिन परमात्मा में हमेशा आनंद बना रहता है। अच्छा बराबर। अब ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसील्ड ब्लिस, इसके अंदर जो सेंटेंस छिप जाना, छिपाना। हाँ, तो ये ईश्वरीय आनंद छिपा हुआ है, रहता है हर एक जीव में ये ईश्वरीय आनंद छिपा हुआ है। हाँ यस, जीव में छिपा हुआ है, हमारे अंदर है ही परमात्मा, हम जानते नहीं है। ओके जी महाराज। हाँ महाराज, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन पेज नंबर 628 पे, जीवा इज अ पार्ट ऑफ गॉड एंड इज कॉन्शियस, इट इज प्योर एंड ब्लिसफुल, which is controlled by Maya, and Maya is under the control of God. Then how can it be impure and harmful? महाराज, ये पूरे सेंटेंस में इनने बताया जीवा इज अ पार्ट ऑफ गॉड एंड इट इज कॉन्शियस, इट इज प्योर एंड ब्लिसफुल, which is controlled by Maya. Then how Maya is under the control of God? And then how can it be impure and harmful? हम क्या तुम्हारा कहना है कि अविद्या जो है माया के द्वारा, हाँ, जो है वो छिपे हुए इसके लिए कष्ट पाते हैं जी। पर ये माया इम्प्योर कैसे बता? कहना है कि माया भी भगवान की है। हाँ एग्जैक्टली, मेरा ये कहना है। तो वो इम्प्योर कैसे होगी? वो इम्प्योर कैसे होगी? दोनों चीजें हैं जी। अरे हमारा जो शरीर है ना, ये पंच 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 जैसे कहते हैं ना, अग्नि तंत्र पंच तत्व से बना हुआ है। हाँ जी जी। और जो पेड़ भी है वो पंच तत्व से बना हुआ है। हाँ जी जी। तो वो पेड़ हमारे अंदर घुसता क्यों नहीं है? हाँ बराबर, कैसा आपने प्रश्न किया। हाँ, माया भी भगवान ने बनाई है, हमारा शरीर भी भगवान ने बनाया है। हाँ, लेकिन दोनों अलग चीजें बनाई है। भगवान ने तो सब सैकड़ों चीजें भगवान ने ही बनाई है। अच्छा, तो वो एक दूसरे के अंदर क्यों घुसेगी? सब बनाई है तो अलग बनाई है भगवान ने। हाँ, तो जी महाराज, तो ये माया अपवित्र है? माया को हम अपवित्र कह सकते हैं? माया तो माया अविद्या है, अविद्या है जी, बराबर। ज्ञान है, अपवित्रता क्यों बोलते हो? अज्ञान बोलो ना इसको। ओके जी महाराज, ओके महाराज। के कारण भगवान भी बंध जाते हैं जी। अब आपने जो कहा ना, प्रसाद की बात कही। हाँ, प्रसाद भगवान को चढ़ाया है, कहाँ की कहाँ तुम लगा रहे हो, तो बता रहा हूँ तुमको। प्रसाद भगवान को चढ़ाया तो पवित्र हो गया जी। तो वो हाँ, लेकिन पर प्रसाद में यदि घी ज्यादा खा लोगे तो पेट खराब हो जाएगा जी। तो आप ये बोलोगे कि तो प्रसिद्ध था, पवित्र था, तो भी पेट खराब हो गया। ओके, नहीं बराबर जी महाराज जी, समझ में आया। भगवान को अगर आप सब प्रसाद, सभी प्रकार का प्रसाद चढ़ाओगे, हाँ, इसलिए कहते हैं कि प्रसाद खाना ना तो एक कणु का छोटा सा एक कणी का मात्र लेना चाहिए, बस ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ओके जी जी। बढ़िया, भगवान को बहुत बढ़िया आपने भोग लगाया है, खूब लड्डू बनाए हैं, हाँ, लगाया, अरे प्रसाद है, खाओ खाओ, और आप 20 लड्डू खा गए तो पेट खराब होगा कि नहीं होगा? जी, पर वैष्णव संप्रदाय में तो यही है कि खाओ है। वैष्णव संप्रदाय तो यही कहता है कि भगवान का प्रसाद चढ़ाओ और वह सब खुद खा जाओ। खाओ तो फिर पेट खराब करो ना जी महाराज। अच्छा, मैं नेक्स्ट पेट खराब करो जी। अच्छा, और दूसरी बात है, उद्देश्य क्या है? देखो सुनो, जरा समझो इस चीज। जी जी महाराज। हाँ, हमारे मन में खाने की वासना है जी, इसलिए कहा है कि भगवान को प्रसाद करके तब खाओ। हाँ, वासना हम खा रहे हैं वासना के कारण। अच्छा, और इसका उद्देश्य है कि अल्टीमेटली पेट भर जावे हमारा, आगे से हम नहीं खावे। हाँ,
वैष्णवों में खाना ही खाना चलता रहता है, जिस स्तर पे है आध्यात्मिक स्तर पे वैसा ही बना रहता है, उससे आगे बढ़ते नहीं है। अच्छा जी, विषय स्तर पे है वो भगवान को भी बेचारे को ऊपर से खींच के अपने घर पे ले आए हैं। भगवान को हम जैसा कर रहे हैं वैसे भगवान को करवा रहे हैं जी। हम जैसा कपड़े पहन रहे हैं भगवान को कपड़ा पहन रहे हैं, हम खिला रहे हैं वैसे भगवान को खिला रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल 5 बार खिलाते भगवान। भगवान के लिए बच्चे कर रहे हैं। हाँ। अरे ये तो उल्टा हो गया ना जी। उद्देश्य है कि अरे भाई ये करके अब बाद में इसके ऊपर चले जाओ। तुम नहीं जा पाते हो तो ठीक है, भगवान के साथ कोई संबंध कर लो। अच्छा। सारा जीवन उस लेवल पे नहीं रहना है। जी जी महाराज। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये समझ हुआ कि नहीं हुआ? तुम तो पुष्टि मार गए हो, तुम जानते हो, ये तुम्हारी बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल महाराज, ये होता है और इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म संबंध हो जाता है। एक बार यदि भगवान के साथ तुम मिलते हो और उनके अनुसार चलते हो तो ब्रह्म संबंध हो जाता है। ईश्वर से ब्रह्म संबंध यानी ईश्वर से संबंध हो जाता है। ब्रह्म संबंध, ब्रह्म वो तो हो जाता है, लेकिन वही सारा जीवन उसी विषय स्तर पर ला गए हम भगवान को। हाँ बस ये विषय स्तर पर होता है हमारा। हाँ जी। क्या है महाराज जी, ये एक्चुअली वैष्णव धर्म के अंदर जो ये ब्रह्म संबंध लेते हैं तो उनको उसी प्रकार से जीवन बिताना पड़ता है जैसे ये सुबह उठे और रात को सोए, उसके बीच में 5 बार सब काम करना पड़ते है। उनको खिलाना, निलाना, धुलाना, सुलाना, ये सब काम करना पड़ते हैं। तो ये तो सब माँ के संबंध हो गए कि जिस प्रकार से एक मनुष्य रहता। तुम नहीं जानते ये सब, तुम जानो तुम्हारा काम। अच्छा जी महाराज जी। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कैन वी कंपेयर द डिवोशन टुवर्ड्स गॉड बिटवीन, महाराज ये सवाल बहुत मेरे को आउट ऑफ वे है कि कैन वी कंपेयर द डिवोशन टुवर्ड्स गॉड बिटवीन सीता, ए टोटली हाउसवाइफ एंड डिवोटेड टू हर हस्बैंड लॉर्ड रामा, एंड मीराबाई हु हैज लेफ्ट हर फैमिली। तो इसको कैसे कंपेयर किया गया है? क्या इसको कैसे कंपेयर, हम इसको कैसे कंपेयर करें कि इसको? we compare the devotion of towards God between Sita, a totally housewife and devoted to her husband Lord Ram, and Mirabai who has left her family also. तो ये तो है ना, मानते हैं ना, मधुर भाव, सख्य भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, ये भाव तो है ना। हाँ हाँ। अच्छा, भगवान को तुमने बच्चा बना लिया ना। हाँ हाँ हाँ। बाल गोपाल को खिला रहे हो तो भगवान को बच्चा बना लिया, आपका वात्सल्य भाव हो गया। अच्छा। फिर सुदामा श्रीदामा आपके जो है वो भक्त वो मित्र हो गए। जी, मित्र भाव हो गया। अर्जुन मित्र हो गया। हाँ। तो ये हनुमान जी दास हो गए, ये भाव है ना। हाँ हाँ। इसी प्रकार से भगवान के साथ मधुर भाव हो गया। मीरा भगवान को अपना पति समझते थे। हाँ। हेलो जी। हाँ महाराज जी। महाराज जी यहाँ पर एक करेक्शन है महाराज जी। अभी क्या है, ये तो होता ही है जी महाराज जी। भगवान को प्राप्त करना। हाँ। भगवान मेरे पति है और मैं पत्नी हूँ, मीरा ने उसको प्राप्त किया था। ओके। तो ये मधुर भाव तो डेफिनेट है, निश्चित रूप से जानते हैं। ये सभी भाव है, दास भाव है, वात्सल्य भाव है, मधुर भाव है, सख्य भाव है, ये 5 भाव है। हाँ बराबर। महाराज जी, दिलीप भाई का क्वेश्चन में एक फर्क है। एक तो है जब मीराबाई का पति एक्सपायर कर गया तो उनको सती होने के लिए मजबूर कर रहे थे लोग, तो बोला कि मेरा पति है कृष्ण भगवान। तो ये सीता जी से कहीं कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं कहा सीता की बात कहाँ कर रहा हूँ। हाँ अपनी बात कहाँ आ रही है यहाँ पे। हाँ, उनको सती के लिए, सती होने के लिए जिंदा आग में जलने के लिए मजबूर किया जा रहा था उस समय। तो वो छोड़ के चली गई। उन्होंने वो प्रश्न कहाँ उठाया? उन्होंने इनके क्वेश्चन में तो ये सती की बात नहीं है। उन्होंने बताया कि सीता जैसा पति का फैमिली, हाँ, और मीराबाई से कंपेयर कर रहे थे। मीराबाई का कहानी कंप्लीटली अलग है। बाबा तुम कंफ्यूज कर रहे हो, मिला रहे हो इस बात को। मीरा तो भगवान को पति मानती थी और जब उनके शारीरिक पति मर गए तो उसने कहा कि मेरे पति तो नहीं मरे। हाँ राइट। क्यों सती होंगी? सीधी बात है। हाँ सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। जी जी। नहीं, तुम्हारे प्रश्न को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? दिलीप भाई का तो प्रश्न नहीं है ये।
दिलीप भाई का था ये शुरू में। जी महाराज, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, is there a difference between Bengal Vaishnavism and other Vaishnavism? क्योंकि ये पेज में लिखा हुआ है। हाँ ठीक है जी। ये बंगाल वैष्णविज्म ये चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया। हाँ बराबर जी। हाँ तो चैतन्य महाप्रभु, इसमें यहाँ संकेत भी तो है, बना हुआ है, लिखा हुआ है ना जी, लिखा हुआ बिल्कुल। हाँ तो चैतन्य महाप्रभु के साथ में बंगाल वैष्णविज्म हुआ। हाँ भगवान का हरि कीर्तन कंटिन्यूसली करना, नृत्य करना इत्यादि, ये सब निरंतर भगवान का नाम करना, उसमें कीर्तन को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, ये सब है, इसको हम बंगाल वैष्णविज्म कहते हैं। ओके जी, बराबर जी महाराज। बस महाराज जी, बस प्रणाम महाराज, प्रणाम। अच्छा ठीक है। सपना प्रणाम महाराज। हाँ भैया आ जाओ। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन अ साधक ऑफ भक्ति मार्ग गेट बेनिफिट फ्रॉम अद्वैतिक नॉलेज? ऐसा है कि ये कहाँ पे पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ी नहीं, मैं पूछ रही हूँ, पढ़ी नहीं इस आर्टिकल में, लेकिन नहीं तो व्हाई शुड यू बॉदर अबाउट इट? ठाकुर जब साधना करने गए वेदांत की, तब भैरवी ब्राह्मणी ने मना किया था ना कि भाई तुम्हारा करोगे तो तुम्हारा भक्ति भाव नष्ट हो जाएगा। जी। तो ये स्टैंडर्ड टेक्निक है कि जो भक्त होगा वो वेदांत की साधना, अद्वैत वेदांत की साधना नहीं करेगा। इवन वेदांतिक नॉलेज भी नहीं चाहिए उनके लिए। क्यों चाहिए? भगवान नहीं, वही मैं पूछ रही हूँ। हाँ, विशिष्ट अद्वैत है या अद्वैत होगा? वो तो ठाकुर को सिद्ध करना था, वो परिपक्व हो गए थे, मैच्योर हो गए थे, इसके लिए। लेकिन अद्वैत वेदांत और भक्ति को हम लोगों के लिए मिला नहीं, मिक्स करना नहीं ठीक, मिक्स करना ही नहीं चाहिए, मिक्स नहीं करना ही ठीक है। ठीक है महाराज, ठीक। अब केवल इतना है कि जगत जो है ये मिथ्या है, ये दोषपूर्ण है, दुखदायक है, ये इतना कर सकते हो। भगवान ने अर्जुन को गीता में शुरू में क्या कहा? द्वितीय अध्याय में ही कहा कि जगत जो है ये मिथ्या है, तुम आत्मस्वरूप हो, ये सब बताया। वहाँ पे अद्वैत की बात नहीं कही, आत्मस्वरूप की बात कही, जगत मिथ्या है, ये दोषपूर्ण है, ये कहा। उसके बाद में द्वादश अध्याय में जाके उन्होंने भक्ति की बात कही। तो शुरू में थोड़े ज्ञान की आवश्यकता है, ये कि मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं मरूंगा नहीं। लेकिन अद्वैत की बात की आवश्यकता नहीं, आत्मा हूँ मैं, निश्चित शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ। न जायते म्रियते, भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा। ठीक है महाराज। बाद में फिर भक्ति की बात कही, लेकिन भक्ति की बात नहीं की। थोड़ा ये जानना कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं। ठीक है महाराज जी, इसी को महाराज, अगर हम ये जानते हैं कि हम आत्मा है और ईश्वर जो है परमात्मा है, तो ये क्या विशिष्ट अद्वैत हो गए? विशिष्ट अद्वैत में भी तो हम ये मानते हैं ना कि हम आत्मा है और वो परमात्मा है, वो हम उनके अंश है। हम परमात्मा के अंश है। हाँ, ए होल। जैसे मेरी बॉडी है, मेरी उंगली जो है वो मेरे बॉडी का अंग है, पार्ट है जी। उस प्रकार से परमात्मा होल है और मैं उनका एक पार्ट, ये हुआ विशिष्ट। तो अगर कोई मेडिटेशन करना चाहते हैं विशिष्ट अद्वैत पथ में, तो वो कैसे करे? वो इसी तरह मानना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा सर्वव्यापी है और मैं उनका अंग हूँ, उसके अंदर। और वो जो परमात्मा है सगुण ब्रह्म है, साकार नहीं है, लेकिन सगुण है या निराकार है? निराकार है, सर्वव्यापी है, ऑल परवेडिंग। ठीक है महाराज। इसका मतलब महाराज जी ये हुआ कि जितने भक्ति सेंट्स हैं वो सब द्वैत और विशिष्ट अद्वैत के दायरे के अंदर ही रहते हैं। हाँ ठीक है। क्योंकि अगर दो नहीं है तो हम पेयर नहीं कर सकते ना भक्ति।
हाँ महाराज, किसी जब भक्ति करते थे तो अद्वैत से नीचे आ जाते थे। जी, अगर किसी को भक्ति करना है तो दो चाहिए ना। हाँ हाँ। अब जैसे माँ शारदा ने मजेदार बात कही, पिछली बार का बात हुई थी शायद इसकी। माँ कहती है कि हम लोग वेदांत, हम लोग जो अपने रामकृष्ण मिशन के लोग हैं, हम लोग अद्वैत वेदांती हैं जी। अद्वैत वेदांती होते हुए मंदिर की पूजा क्यों करते हैं? तो फिलोसॉफिकली दृष्टि से हम अद्वैत वेदांती हैं, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से द्वैत विशिष्ट अद्वैती। स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम विशिष्ट अद्वैती। ठीक ठीक है महाराज। हाँ, ये हो गया। और एक क्वेश्चन है महाराज, that here we can see the bhakti movement at different times to protect Hinduism. On the other hand, some saints had their disciples from both the religions. This is very interesting. And how was it possible? What about their spiritual practice like chanting God's name and etc.? हाँ, वो कबीर भी थे, नानक भी थे, ये दूसरे मुसलमान संत भी थे, लेकिन अपना अल्लाह का नाम जप करते थे। अपने कमरे में बैठी अल्लाह का नाम जप करते थे, उसमें क्या दुख था? लेकिन हिंदू सेंट के डिसाइपल है। हाँ, ठीक ठीक है महाराज। प्रणाम महाराज। क्या महाराज जी एक छोटा सा डाउट रह गया महाराज जी। एक मिनट ठहरो, अब कोई बचा कि नहीं बचा? अब किसी का क्वेश्चन है कि नहीं? नहीं है? हाँ पूछो। हाँ महाराज जी, ठाकुर जी ने ये माँ ने कहा कि अच्छा सुनो देवाशीष, वो हाउ आर यू, हाउ इज योर हेल्थ? महाराज जी अभी धीरे धीरे रिकूप कर रहे हैं, अभी कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, अभी दोबारा टेस्ट कोविड नहीं करवाया। तो पहले जो था वो ठीक है, तुम इतने ठीक हो गए हो कि जूम अटेंड कर सकते हो, लेकिन इतने ठीक नहीं हुए हो कि क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना? मैं पूरा आर्टिकल कई बार पढ़ चुका, लेकिन क्वेश्चन ऐसा कुछ जमा नहीं महाराज जी। महाराज जी एक जगह ने माँ ने ये ठाकुर जी ने कहा है कि अद्वैतवाद का आंचले बेंदे जेखने खुशी घुड़े बारा, मतलब ये अद्वैतवाद का ये समझ में नहीं आया महाराज जी। ठीक है, बोलो। हाँ क्या बोले? अद्वैतवाद का आंचल में बांध के जहां मर्जी घूमो। हाँ, ठाकुर बोलते हैं ना क्या है अबार बोलो तो। अद्वैतवाद को आंचल में बांध के कहीं जहां घूमना है घूमो। अद्वैत के आंचल में बांधे ना अच्छे की एग्जैक्ट की अद्वैत कथा अच्छे। हाँ, अद्वैतवाद का आंचले बेंधे जेखने खुशी घुड़े बारा। तो वो माँ भी तो यही बोलती है, माँ बोलती है हम लोग सब अद्वैती हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? संसार में तो रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, काम करेंगे, तो ये द्वैत के लेवल पे हो रहा है, लेकिन मन में पक्का रहे कि मैं अद्वैती हूँ। जैसे हम रामकृष्ण मिशन के सन्यासी हैं, हम बस में जा रहे हैं, तो बस में कितने लोगों से मिल रहे हैं जी, कई लोगों से बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं जी, दूसरी जगह पे गए, किसी प्राइवेट सेक्टर पे गए, लोगों के साथ, भक्तों के साथ बैठ के खाने खा रहे हैं जी। पक्का जानते हैं कि हम रामकृष्ण मिशन के सन्यासी। जी महाराज जी। तो मतलब ये है कि अपनी आइडेंटिटी पक्की रख के जो करना हो सो करो, दैट इज द पॉइंट। अच्छा जी। तो और इस दृष्टि से कहते हैं हमारी आइडेंटिटी है, हम वेदांत परमात्मा है, हम ब्रह्म है, हम ब्रह्मास्त्र। अच्छा जी महाराज जी। इसलिए कहते हैं शुरू में खूब तपस्या करके, ध्यान जप करके आप पक्के बन जाओ, मक्खन बन जाओ। यानी ये जान लो परमात्मा संसार से पृथक है, संसार माया है, हम ब्रह्म है, इस लेवल पे एस्टेब्लिश हो जाओ, उसके बाद जो करना है। जी महाराज जी, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। यानी मक्खन बन के जो करना हो सको। हाँ, तो मक्खन बनने का रास्ता जो है वो विशिष्ट अद्वैतवाद
रास्ता ही हम लोग पकड़ते हैं। अद्वैत में भी तो सारा रास्ता है। परंतु शम धम उपरिति तितिक्षा श्रद्धा जमादान श्रवण निधिध्यासन, ये भी तो है। जी महाराज जी। विशिष्ट अद्वैत भी है, द्वैतवाद भी है, अद्वैत भी है, सब में साधना है। जी महाराज जी। करो तो बातचीत करने से नहीं होता। जी महाराज जी। थैंक यू महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। और प्रणाम महाराज जी। रीता वाधवा, क्या मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ लूं? अच्छा बोलो। हाँ बोलो बोलो। देखी नहीं। महाराज, जैसे हमने पढ़ा वचनामृत में भी और ठाकुर हमें बोलते हैं कि वैराग्य, आपने अभी बताया ना, वैराग्य हुए बिना कुछ भी नहीं होगा, वैराग्य होना ही चाहिए। तो ठाकुर ने बताया है कि जैसे शमशान वैराग्य भी होता है। अभी दुख हुआ तो हमें वैराग्य हो गया, जब सुख हुआ तो फिर से वैराग्य हो गया। तो सच में हमारी स्थिति तो बड़ी दयनीय है कि हमें वैराग्य आता नहीं है। पर क्या ऐसा होता है वैराग्य धीरे धीरे बढ़ता है? वैराग्य भी धीरे धीरे जीवन में बढ़ता है, धीरे धीरे, ऐसा होता है क्या? या एकदम से ही वैराग्य आता नहीं है बोले ना? तुम्हारा प्रश्न ये है। प्रश्न क्या है तुम्हारा? मेरा प्रश्न ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि वैराग्य, जिस तरह से भक्ति धीरे धीरे बढ़ती है, तो हमारे जीवन में क्या वैराग्य भी धीरे धीरे बढ़ता है? बिल्कुल। वैराग्य देखो विचार के द्वारा होगा, धीरे धीरे नहीं बढ़ता। संसार में सारा जीवन निकल गया, 25 बरस से लेके 75 बरस की हो गए, कोई संसार वैराग्य नहीं बढ़ता। संसार में आसक्ति बढ़ती चली जाती है, ये होती कि नहीं होती? पूरे हो गए तब भी बीवी बच्चा अपने बीवी के साथ, बच्चों के साथ, नाती पोते सबके साथ आसक्ति बनी रहती है कि नहीं बनी रहती है? जी महाराज जी। तो वैराग्य तो हुआ नहीं? बिल्कुल नहीं। तो बोलने से नहीं हो जाता कि वैराग्य बढ़ता है। जी। विचार के द्वारा वैराग्य बढ़ता है। जी जी जी, बहुत सुंदर महाराज। अच्छा, वो पिछली बार मेरा मालूम है जूम मीटिंग होती है मेरी एक, यानी वो हर सैटरडे को 45 मिनट्स के लिए। हाँ जी। 5:45 पर रामकृष्ण अद्वैत आश्रम के वो होता है, प्रवचन होता है मेरा। अच्छा। हाँ, तो अगली बार, पिछली बार भी हुआ था, अगली बार मैं वैराग्य को लेने वाला हूँ। अरे महाराज, मैं अगली बार हूँ नहीं, मैंने आपको मैसेज डाला, मैं तो बेलूर मठ जा रहा हूँ। जूम की लिंक भेज देता हूँ ना। जी महाराज, ठीक है। जूम में ना महाराज, वो पतंजलि योग सूत्र की क्लास है, जूम के थ्रू नहीं होता, वो तो रिकॉर्ड करके यूट्यूब चलता है ना। यूट्यूब में नहीं, उसके रिकॉर्डिंग और डायरेक्टली भी होता है, इमीडिएटली। अच्छा। हाँ, तो उसके लिंक फिर हम बता देंगे। पिछले लेक्चर की लिंक भेज देता हूँ मैं जी। वो है रामकृष्ण अद्वैत आश्रम वाराणसी की इस वेबसाइट पे जी, यूट्यूब पे। हाँ ओके जी, भेज देता हूँ, तुम सबको भेज देना। जी 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 महाराज। अगली बार मैं वैराग्य की बात कर रहा हूँ, वैराग्य कैसे बढ़े, हाँ, भावनाएं क्या है, विचार कैसे करना, बराबर, सब होगा। बिल्कुल। बहुत महाराज जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न रह गया था कि राम भगवान और कृष्ण भगवान तो बिफोर जीसस आए थे, तो रामानंद जी 1299 में नॉर्थ इंडिया में इनका प्रचार किया, तो इतना दिन हम लोग क्या कर रहे थे? 1300 साल हम लोग क्या कर रहे थे? राम भगवान लड़ाई कर रहे थे। नहीं, अलवर भी तो वैष्णव थे, वो तो 5th सेंचुरी टू 9th सेंचुरी उन्होंने प्रचार किया ना काफी, और उसके बाद भी किया। रामानंद जी ने, हाँ, नॉर्थ इंडिया का बात कर रहा हूँ मैं। रामानंद जी 1299 पे चालू किए हैं, और 1300 साल क्या कर रहे थे? मतलब राम भगवान और कृष्ण भगवान को प्रश्न बोलो, समझ में नहीं आ रहा है। कृष्ण भगवान, राम भगवान इतना दिन पहले आए थे, तो उसका जो प्रभाव जो है 1300 साल में से था ही नहीं। रामानंद जी जो रामानंद जी सेंट थे, वो 1299 पे जन्म लिए थे। तो उसका पहले से हम लोग नॉर्थ इंडिया में खास करके कोई श्री कृष्ण भगवान या राम भगवान का कोई भी प्रचार हम लोग देख नहीं रहे हैं आर्टिकल में, जो जैसा मिला है।
तो इसका मतलब क्या है कि उनका प्रभाव उतना तगड़ा हुआ नहीं था। अरे भाई हुआ नहीं हुआ तो अब क्या फर्क पड़ता है तुमको? अब क्या कर रहे हैं? नहीं अचानक मैंने पड़ता है क्या तुमको? 14th सेंचुरी में स्टार्ट किया है। देवाशीष जी, मैं एक बात कह सकता हूं कि मुझे लगता है, मैं तो बिल्कुल पढ़ा नहीं इतना ज्यादा, लेकिन 1299 के पहले तक शायद भगवान राम और भगवान कृष्ण का इतना ज्यादा प्रभाव था कि किसी को प्रचार करने की जरूरत नहीं थी। बस सीधा जवाब, बहुत बढ़िया जवाब। Yes, yes, that is correct, Sanjay ji. That is correct. कोई भी सेंट आया नहीं था। सब सेंट राम राम करके कृष्ण कृष्ण करके मुक्त हो रहे थे, उनको समाज में बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, समाज में भी उनका प्रभाव था, सब अपने अपने घर में राम राम स्वाभाविक था। जब वो परंपरा विलुप्त होने लगी तब रामानंद जी अवतरित हुए और उन्होंने पुनः उसको आवेगमय किया। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, आप बंद करें कि नहीं बंद करें? जी महाराज। हाँ महाराज, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। बंद तो करना पड़ेगा, आपके दर्शन नहीं होंगे। महाराज जी, थैंक यू महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। see you. प्रणाम महाराज। श्री राम कृष्ण